Good morning. Welcome back to another lecture of study of animal tissues. We completed two lectures. In two lectures we completed our epithelial tissue incomplete. हमने epithelial tissue में types of epithelium पढ़ा था. उसके बाद we spoke about glandular epithelium. So now altogether a fresh topic, completely different from what you did in your previous lecture. Correct? So the next topic which we talk about is connective tissue. तो देखो नाम बता रहा है connective tissue क्या है बेटा? A tissue which is basically associated with connection, making connections with respect to different parts of your body, different organs of your body. ठीक है बेटा? तो connective tissue के बारे में basic information पहले तो आपको याद करना है. ये नाम क्या है? That it is connecting different parts of the body. So basic information क्या है? That connective tissue are mesodermal in origin. All the connective tissue are mesodermal in origin. Now when I say that mesodermal in origin, each and every हर एक type of mesodermal क्या है? ये अगर आपको समझना है mesodermal. These are the primitive. जैसे for example when you were being formed, right? Zygote के बाद embryo फिर differentiate होता है into three different layers. It is just like assigning a job, है ना? अब एक embryo बना है, so that embryo divides into three differentiates. तीन अलग-अलग layers बनेंगे. Ectoderm, endoderm and mesoderm. Correct? So ectoderm जो है mostly it makes your ecto refers to outside. So mostly it makes your nervous system and your outside part of your body, skin, nails, etc. ठीक है? Endodermal makes your internal lining. That is for example that internal tube that is your elementary canal. ये बनाता है. ठीक है? और ये दोनों के बीच में जो खाली जगह है that is filled by that is majorly filled by mesodermal origin के cells. मतलब ये क्या है बेटा कि तीन लेयर डिफरेंशिएट हो गए. अब तीनों लेयर को अपना अपना जॉब मिल गया. एक्टोडर्म वाले लेयर्स अपना अपना जॉब खत्म कर लेंगे. एंडोडर्म वाले लेयर्स अपना अपना स्ट्रक्चर्स बना लेंगे. मेसोडर्म वाले जो सेल्स है दे विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म इवन मोर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑर्गन्स. सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद करना है विद रिस्पेक्ट टू मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है? सो आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर डायग्राम. आई एम वेटिंग फॉर वी विल डू इट टुगेदर. So talking about connective tissue, first we have to understand the classification of connective tissue. तो connective tissue में कितने major types हैं? ठीक है? So basic classification लिख लेते हैं पहले. Classification of connective tissue. Now you have तीन major sections में divide किया है. That is connective tissue proper. Connective tissue proper, then you have structural connective tissue, then you have fluid connective tissue. ठीक है? Again, the topic is comparatively vast. Then we talk about the characteristic feature. Basic features लिख लेते हैं, classification लिख लेते हैं, फिर उनको characteristic पर जगह लिखा है, जगह talk about that. ठीक है? Connective tissue proper जो है बेटा that is true connective tissue associated with actual connection between different parts of the body. Okay? So connective tissue proper में further हमने classify किया into two major categories and that is loose connective tissue and you have dense connective tissue. ठीक है? Loose connective tissue referring to जो matrix है under the microscope if you will see, तो the cells will be sparsely arranged. दूर रहेंगे cells, right? There will be large amount of extracellular spaces. So loose connective tissue. Dense में आपको जो cells और fibers है, they will associate, they will be densely packedly arranged, compactly arranged. ठीक है? Loose connective tissue and dense connective tissue. ठीक है बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर दो टाइप्स है. दैट इज एरियोलर connective tissue and
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देयर आर फर्दर टाइप्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप है बेटा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम बात करेंगे कि रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है। इट इज जस्ट द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ओके, सेल्स कैसे अरेंज है, तो रेगुलर मस्त रो लाइक पैटर्न में है, इवन पैटर्न में है तो इट इज डेंस रेगुलर। अगर हैप्पीजार्ड रैंडम पैटर्न में है सो इट इज डेंस इरेगुलर। कूल। अब डेंस रेगुलर में यू हैव further types, that is white fibrous connective tissue, white fibrous connective tissue, then you have yellow fibrous connective tissue, yellow fibrous connective tissue, then you have tendon, you have ligament। ठीक है। और एक टाइप है बेटा जिसको बोलते हैं रेटिक्युलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिक्युलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। सो अंडर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यू हैव दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये फाउंडेशन लेवल का है बेटा, आपको शायद आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, देन यू हैव येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वी टॉक अबाउट व्हाइट, व्हाट आर व्हाइट फाइब्रस, व्हाट आर येलो फाइब्रस। ठीक है। देन यू हैव टेंडन, देन यू हैव लिगामेंट, देन यू हैव रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कूल। स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू वो है जो स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। एंड अंडर स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू यू ओनली हैव टू मेजर टाइप्स, दैट इज cartilage and bone। cartilage and bone दो ही कैटेगरी है। ठीक है। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में यू हैव blood and lymph। ठीक है। so that is all with respect to the classification। once again dividing what under देखो classification में you have we have broadly classified the entire connective tissue under three major sections, that is connective tissue proper, structural connective tissue and fluid connective tissue। connective tissue proper के अंदर we have based on the matrix, based on the type of matrix, so we have loose connective tissue and dense connective tissue। loose connective tissue and dense connective tissue में we have based on the arrangement, based on the arrangement we have dense regular and dense irregular। under dense regular you have white fibrous connective tissue, yellow fibrous connective tissue, tendon, ligament and reticular fibrous। okay। उसके बाद स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सिर्फ इतना सेक्शन आपको थोड़ा सा पहली बार पढ़ते हो, बट यू नो व्हाट इज अ कार्टिलेज, यू नो व्हाट इज अ बोन। ठीक है। कार्टिलेज जो है बेटा, कार्टिलेज इज अ स्कैफोल्ड। once upon a time you also had a cartilage skeleton and then it got converted into bone। cartilages are comparatively not very strong as bone, इसलिए रिक्वायरमेंट है कि हमारी कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में यू हैव ब्लड, an important fluid or transporting agent और मेजर जो काम कर रहा है that is blood।
ट्रांसपोर्टेशन का काम बोलो, सर्कुलेशन का काम बोलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इम्यूनिटी का काम बोलो। लिम्फ इज also referred to as tissue fluid, मतलब जो excess water, excess fluid which is draining out from a tissue, draining out from the blood and it drains into the tissue, and that is what is lymph. Lymph का concept थोड़ा सा complicated है, we talk about when we do it in detail. ठीक है बेटा। अब बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होंगे कनेक्टिव टिश्यू का? हमने पहली पॉइंट लिख लिया दैट इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सेकंड पॉइंट वी विल राइट that they have abundant matrix, ठीक है। एंड मैट्रिक्स क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे सेल का मैट्रिक्स क्या है? साइटोप्लाज्म। इट्स अ ग्राउंड सब्सटेंस इन व्हिच द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड, ठीक है। दे हैव abundant matrix. They also have fibrous matrix, मतलब टेक्निकली दे विल हैव फाइबर्स, प्रोटीन के फाइबर्स होंगे बेटा, है ना। प्रोटीन के फाइबर्स, वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कोलेजन है, इलास्टिन है, रेटिक्यूलिन है, ठीक है। तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं आपके पास। मेजरली तीन टाइप के फाइबर्स है व्हिच आर प्रेजेंट इन दी कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कोलेजनस फाइबर और व्हाइट फाइबर। अब व्हाइट फाइबर क्यों बोला? बिकॉज़ अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स दैट वे। एक व्हाइट कलर का प्रोटीन, एक व्हाइट कलर का फाइब्रस मटेरियल है, इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज कोलेजन, है ना। कोलेजन इज the most abundant protein found in the animal world, that is in humans, in other animal world also, ठीक है। in zoological world collagen is the most abundant protein which is being formed, ठीक है। इसके साथ कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इलास्टिन जो है, इलास्टिन इज एसोसिएटेड विद इलास्टिक प्रोटीन्स आर येलो फाइबरस प्रोटीन्स, ये बात करते हैं येलो फाइबर्स। एंड इलास्टिन जो है दैट इज एसोसिएटेड, नाम बता रहा है, इलास्टिन इज एसोसिएटेड विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है। रेटिक्यूलिन जो है, रेटिक्यूलिन का रेटिक्यूलर का मतलब क्या है? एकदम डेंस नेटवर्क, फाइन नेटवर्क, है ना, एकदम फाइन जाली। सो दैट काइंड ऑफ टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज रेटिक्यूलिन। इट इज वेरी सिंपल। व्हाइट फाइबर्स कौन बनाता है? कोलेजन। सॉरी, व्हाइट फाइबर्स किससे बने हैं? कोलेजन। येलो फाइबर्स किससे बने हैं? इलास्टिन। रेटिक्यूलर फाइबर्स किससे बने हैं? रेटिक्यूलिन। वेरी क्लियर। सो दे हैव अबंडेंस, दे हैव फाइबरस मैट्रिक्स, ठीक है। So these are the major and one more feature लिख लो, they will have abundant extracellular spaces, abundant extracellular spaces। फटाफट 2 मिनट में कॉपी कर लो। अब मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, पॉज कर लो वीडियो और कॉपी कर लो बेटा फटाफट। हो गया? So moving ahead with the first type of tissue, we take up connective tissue proper, and under connective tissue proper we take up loose connective tissue. Loose connective tissue we will take up areolar first, ठीक है। So I am erasing everything apart from this. ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आर ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, ट्रू कनेक्टिव टिश्यू joining different parts of the body, joining different parts of the body, ठीक है। under
under true connective tissue proper, we have the first category, that is loose connective tissue. ठीक है? Now when you say loose connective tissue, they are associated with the arrangement. टेक्निकली बोलने का मतलब ये है कि जो सेल है, आई विल बी ड्राइंग एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप हमने वहां पे बनाया है, ठीक है? सो आई विल बी ड्राइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम. आप देख रहे हो कि दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल, एंड ऑल दी सेल्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर. जैसे हमने एपिथेलियम में देखा था, एपिथेलियम में ईच एंड एवरी सेल वाज लिंक्ड टू ईच अदर बाय सेल जंक्शंस, राइट? बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ टिश्यू, आपको ऐसे रैंडमली फाइबर्स दिखेंगे, फाइबर्स है, राइट? आपको रैंडमली सेल्स दिखेंगे अलग अलग डिफरेंटली प्लेस्ड. सो व्हेन यू सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको जो मैट्रिक्स दिख रहा है दैट इज कंपैरेटिवली लूज. द सेल्स आर आल्सो लूजली अरेंज्ड, दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, हेंस वी कॉल इट एज लूज कनेक्टिव टिश्यू. वेरी क्लियर बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अब वहां पे डेंस नाम क्यों दिया है? ठीक है, डेंस. अब देखो फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स प्रोवाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेंसिटी, इट मेक्स अ सब्सटेंस इवन मोर डेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग व्हाइट लिया और मैंने ऑयल लिया, या एग व्हाइट लिया, वाटर लिया, आई एम नॉट मिक्सिंग देम, आई एम कीपिंग पुटिंग देम, एग व्हाइट डाल दिया, एग व्हाइट, ठीक है, उसके ऊपर पानी डाल दिया, विच विल सेटल डाउन? डेफिनेटली एग व्हाइट. ठीक है, अगर मैंने ऑयल डाल दिया, विच विल सेटल डाउन? डेफिनेटली एग व्हाइट. तो ये लॉजिक लगाने का बोल रहा हूं बेटा कि प्रोटीन्स मेक द सब्सटेंस डेंसर. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका लॉजिक लग जाता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या ज्यादा होगा? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स किस फॉर्म में है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स. So loose connective tissue is characterized by less amount of fibers, whereas dense connective tissue is referred to as dense connective tissue में there will be large amount of fibers. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू का? Cells are sparsely arranged. Cells are sparsely arranged, less amount of fibers in the matrix. Less amount of fibers in the matrix. ठीक है बेटा? Under this we have to talk about the first type of tissue. Under this we have to talk about the first type of tissue, that is areolar connective tissue. ठीक है, अब एरियोल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एरियोल? एरियोल रेफर्स टू एम्प्टी स्पेसेस. एरियोल का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेसेस. तो टिश्यू का नाम कैसे मिलता है? दीज टिश्यूज आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन वेरेवर यू हैव एम्प्टी स्पेसेस. अब एम्प्टी स्पेसेस कहां पे है तुम्हारे बॉडी में? अब एम्प्टी स्पेसेस का यहाँ पे रेफरेंस क्या है बेटा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज दैट टिश्यू व्हिच इज कनेक्टिंग योर स्किन विद द मसल. सी अंडरस्टैंड? यू इंटरनली हैव अगर हाथ को कंसीडर कर लिया, तो अगर मैंने कट किया तो इंटरनली सबसे अंदर दिखने वाला स्ट्रक्चर क्या है? बोन, राइट? बोन के ऊपर मसल है, राइट? मसल के ऊपर हमारी स्किन है, राइट? सो मसल और स्किन के बीच में पैकिंग टिश्यू है. सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम क्या है बेटा? इट इज इन जनरल टर्म इट इज कॉल्ड एज पैकिंग टिश्यू. व्हाई इज इट कॉल्ड एज पैकिंग टिश्यू? बिकॉज इट इज पैकिंग अप, इट इज फिलिंग अप द एम्प्टी स्पेसेस, द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मसल एंड द स्किन. समझे बेटा? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जो मसल और स्किन को कनेक्ट कर रहा है. एंड दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू at certain places it gets converted into adipose connective tissue. Adipose connective tissue is associated with fat storage. अब फैट स्टोरेज की अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं तो फैट स्टोरेज एक सर्टेन एज के बाद ज्यादा होने लगता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट दी छोटे बच्चे, है ना, व्हेन यू वर लिटिल, व्हेन यू वर किड्स, देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं इन देयर चाइल्डहुड आल्सो, बट मोस्टली व्हेन यू टॉक अबाउट मोस्ट केसेस में
the content of areolar connective tissue in young children is more, but as you grow older and older and older, the amount of the content of areolar connective tissue decreases and adipose connective tissue increases. इसके ऊपर आते हैं थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अब मैंने आपको यही बताया कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा कि रिपेयरिंग वेयर एंड टेयर। देखो एक लॉजिक आपने ये आपको याद करना है कि व्हेन यू वर लिटिल आप इधर गिरते थे उधर गिरते थे, इतनी सारी चोट लगती थी, एंड जो भी इंजरी था दैट यूज्ड टू हील वेरी रैपिडली विदाउट लीविंग अ स्कार। अगर आपको माथे पे चोट लगी है या फिर कहीं पे भी चोट लगी है, व्हेन यू वर लिटिल, राइट, so it used to heal and there was no scar left, there was no mark left, यहाँ पे इंजरी हुई थी। बट यही चीज अगर आपके अडल्ट स्टेज में लगती है, दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 20 अगर लगती है, अगर ऐसा ही कोई इंजरी, अगर आप साइकिल से गिर गए, गाड़ी से गिर गए, तो दैट मार्क रिमेन्स, राइट। बच्चे साइकिल से इतनी बार गिरते हैं बट क्या उनकी बॉडी में पूरी बॉडी में साइकिल के निशान है, साइकिल के गिरने के निशान है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? Because there the regeneration of the areolar connective tissue was faster. एक तो areolar connective tissue बहुत ज्यादा था छोटे बच्चों में, and the regeneration capacity, फाइबर्स का रोल ही होता है बेटा regeneration, because टिश्यू को डैमेज हुआ है तो वो डैमेज को भरने के लिए you require tissues, you require fibers, ठीक है। सो बचपन में areolar connective tissue ज्यादा था, the more the amount of areolar connective tissue, the faster is the regeneration of the destroyed damaged part, faster is the repair of the damaged part। तो इसका फंक्शन क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? वेयर एंड टेयर और रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। बट एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर एंड ओल्डर, आपकी बॉडी की आपकी डाइट इंक्रीज हो जाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म दैट इज बॉडी की केमिकल रिएक्शंस, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इट डिक्रीजेस, है ना। हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेस कम हो जाती है, बच्चे थे तो उतने खेलते थे कूदते थे, बट एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर आपका खेलना कूदना इज ओनली लिमिटेड टू क्रिकेट, इज ओनली लिमिटेड टू वॉलीबॉल, दैट टू वंस अ वीक, राइट। So somewhere down the line your physical activity is restricted there, and when your physical activity is restricted, your body tends to go in a storage mode. So body क्या करती है? बॉडी आपके डाइट में से फैट को स्टोर करती है, बट अभी फैट स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए, है ना। तो फैट स्टोर, बिकॉज फैट का भी रोल है आपकी बॉडी में। व्हाट इज दैट रोल? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ इंटरनल बॉडी हीट, राइट। वी ऑल नो, पूरी कायनात जानती है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना ह्यूमन का 27 डिग्री सेल्सियस। Why doesn't this particular internal temperature change? Because of the external insulation of your fat, ठीक है। So fat internal heat को बाहर जाने नहीं देता। दूसरा है कि fat is associated with cushioning effect, है ना। It is acting as a mechanical shock absorber। हम करके फिसल के गिर गए, है ना, हड्डी फसली, इमीडिएटली हड्डी फसली टूटती नहीं है, कहां पे गिर गए, यहाँ पे गिर गए, and there is large amount of fat associated everywhere, right? So fat is providing a cushioning effect for that, ठीक है। So fat की रिक्वायरमेंट है। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जल्दी कुछ भी थोड़ा सा भी खा लिया तो मोटे हो जाएंगे, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी नहीं होंगे। क्या होगा? दोनों सेम पराशा है। कुछ बच्चे थोड़ा सा भी खाएंगे तो भी मोटा हो जाएंगे, कुछ बच्चे इतना सारा खाते हैं फिर भी मोटा नहीं होते। हम बोलते हैं ना कि मला जीवन लागत नहीं, है ना। तो बोलने का मतलब ये है that after a certain point of time you require a large amount of fat in your body. So this areolar connective tissue under your skin at required places gets converted into adipose connective tissue. For example, और ये भी है ना, ये it is also restricted. It is also associated, differently associated with male and female. आपने देखा रहेगा कि मेल्स में बेली रीजन में फैट डिपोजिशन होती है, बट फीमेल में बेली रीजन नहीं होता, हिप रीजन में डिपोजिशन होता है, ब्रेकियल रीजन में, यहाँ पे ब्रेकियल रीजन लोअर पोर्शन ऑफ द अपर आर्म में डिपोजिशन होता है। यू हैवंट सीन अ मेल हैविंग अ लप अपर आर्म ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज, आई टोल्ड यू दैट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। बाद में लिखेंगे हम, पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है दैट इज अ जनरल डायग्राम ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कूल। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैज सर्टेन specific type of cells. We will talk about those cells and we will write down those cells here there. First diagram बना
फटाफट डायग्राम बना लो बेटा, मेरे साथ बना लो। Okay, so this is just a rough diagram or schematic representation of what a areolar connective tissue looks. ठीक है, so under areolar connective tissue you have several different type of cells. ठीक है, तो यहाँ पे मैं components लिख देता हूँ, एक लाइन में फंक्शन लिख लेंगे. Components and then we'll write the function. ठीक है, components में पहला component क्या आएगा? Matrix. First component is matrix. What do you mean by matrix? It is the intercellular ground substance. ठीक है, matrix में important mucopolysaccharide होता है. It has mucopolysaccharide. What do you mean by mucopolysaccharide? Mucopolysaccharide is the association of amino acids plus carbohydrates. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड. अब हाइलुरोनिक एसिड जो है दैट इज वन, इट इज जस्ट लाइक अ ग्लू, गम. ठीक है, ये एक सेल को मतलब टेक्निकली सेल्स को मैट्रिक्स में फिक्स करके रखता है. इट इज अ फिक्सिंग कंपोनेंट. सो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है बेटा? मैट्रिक्स. कूल. द सेकंड कंपोनेंट, सो हियर वी विल ट्राई टू राइट डाउन एंड देन वी ट्राई टू लेबल. सो ये खाली जगह जो आपको दिख रही है दैट इज योर इंटरसेल्युलर, सेल्स के बीच में, तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. उसके बाद सेकंड कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं फाइब्रस कंपोनेंट. ठीक है, सेकंड कंपोनेंट इज फाइब्रस कंपोनेंट. ठीक है, अब फाइबर्स में the first and the most important type of fiber is referred to as white fiber. अभी मैंने आपको जो भी चीजें बताई वही लिख रहा हूं. ठीक है, white fibers, why are they called as white fibers? They are made up of collagen. White fibers also referred to as collagenous fiber. क्यों? Because made up of collagen. ठीक है, फंक्शन क्या है इनका? The function is they provide a tensile strength. Tensile comes from the word tension. Tension मतलब जो tension here is associated with strength, right? For example, if you are lifting a particular weight, 5 किलो hold कर रहे हो, कितना टाइम होल्ड कर सकते हो? So weight is also a tension, no? It is a tension on your hand, correct? So आपकी मसल की कैपेसिटी है जिसकी वजह से आपको 5 किलो का वजन बहुत टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो, right? So if your muscles durability and working is comparatively weaker, तो आप 5 किलो का वजन इतना बहुत टाइम तक लिफ्ट नहीं कर सकते. So again that comes to tensile strength. Okay, so tensile strength is associated with strength, strong nature. The second type of fiber
Yellow fibers also referred to as elastic fibers. क्यों elastic fibers बोला बेटा? क्यों? क्योंकि elastin प्रोटीन से बना हुआ है. Now one characteristic feature which you need to understand, ये जो हमने बनाया है, that is your white fibers. So characteristic feature क्या है white fibers का? White fibers are associated. White fibers ये unbranched, they appear to you like a bundle, right? Wavy bundle के जैसा दिखता है. तो white fibers आपको clearly diagram से label करने आना चाहिए. ठीक है? Yellow fibers are made up of elastin proteins and इनका काम क्या है? Provide certain amount of elasticity. ठीक है? एक certain amount of elasticity. For example, they are present in your, they are also present in your lungs. है ना? Your lungs are one of the organ which expands and contracts. Right? So elastic fibers which are required for this particular function. So ये आपको जो लाल कलर में जो हमने बनाया, that is all elastic fibers. Characteristic feature देखो, ये branched है, singly है, they are present in group, they are present in bundle, whereas yellow fibers are present single, right, and they are branched. ठीक है. तीसरा टाइप का फाइबर है जो आपको नहीं अभी पढ़ना है, दैट इज वो डायग्राम में नहीं दिखेगा आपको, वो इट इज ओनली एसोसिएटेड विद lymphatic tissue and that is referred to as reticular fiber. Associated with immunity. इसको सिर्फ ऐसे ही याद कर लो बेटा. ठीक है, वो इस डायग्राम में नहीं बता सकता. ठीक है, इसका आपको समझ गया है. These are the हर एक फाइबर का आपको फंक्शन याद करके रखना है. ठीक है. और now something special about collagen fiber. आपने there is a concept called stretch marks. I hope everyone knows this. What is a stretch mark? है ना? Stretch mark is due to अगर कोई इंसान है जो पहले बहुत ज्यादा मोटा था, अब वो पतला हो गया है ना, तो उसकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट की स्ट्रेच मार्क्स दिखती है. कैरेक्टरिस्टिकली स्ट्रेच मार्क्स आर सीन इन प्रेग्नेंट लेडीज, है ना. तो प्रेगनेंसी के बाद उनके स्टमक रीजन, बिकॉज़ द बेली रीजन हैज एक्सपेंडेड टू अ कंसीडरेबल लेवल, करेक्ट, तो उसके उनके बेली रीजन में एक स्ट्रेच मार्क्स दिखता है. So we come back to this. So what do you mean is this stretch mark? क्यों ऐसे कैरेक्टरिस्टिकली लाइटर शेड का मार्क दिखता है? Why is at certain areas, why does the skin becomes unevenly toned, right? So इसका रीजन ये है बेटा कि I told you that if you put on a weight, ना, जैसे प्रेगनेंसी में the stomach expands और स्टमक एक्सपैंड हो रहा है तो स्किन एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है, और स्किन के नीचे क्या है? स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना. सिमिलरली अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है और तुरंत वो पतला हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, द स्किन हैज एक्सपैंडेड ऑलरेडी, करेक्ट, एंड अंडर दैट पर्टिकुलर टिश्यू देयर इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इतना स्किन के कंपैरिजन बिकॉज़ स्किन इज कंपैरेटिवली थिनर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट दैट थिन. ठीक है, तो जब स्किन एक्सपैंड हो रहा था, उसके सब्सिक्वेंटली उसके नीचे का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आल्सो एक्सपैंड्स एंड देयर इज अ गैप, देयर आर एट सर्टेन एरियाज देयर आर गैप्स, है ना, ऐसे कट लग जाती है. मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैन नॉट स्प्रेड कंप्लीटली, तो बीच बीच में गैप्स आ जाती है. ठीक है, सो दैट गैप इज अ ट्रॉमा, इट इज जस्ट लाइक एन इंजरी, करेक्ट. अब ये गैप है, ये गैप के अंदर सेल्स तो नहीं आ सकते, तो ये गैप कौन भरता है? ये गैप रख नहीं सकते, मतलब टेक्निकली हो नहीं सकता. तो ये गैप कौन भरता है? इट इज फिल्ड बाय दीज व्हाइट फाइबर्स. ठीक है, तो आपकी स्किन ऑलरेडी ट्रांसलूसेंट टाइप की स्ट्रक्चर है. आपका जो ईयर ड्रम है दैट इज आल्सो इट आल्सो हैज अ लेयर ऑफ स्किन, तो इट इज ट्रांसलूसेंट, है ना. आपने ये बचपन में किया होगा, अगर बैटरी डालते हो तो लाल लाल कलर का ये दिखता है, दैट इज दी कंपैरेटिवली इट इज एन इंडिकेशन दैट योर स्किन इज ट्रांसलूसेंट. कूल. तो स्किन के नीचे का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खाली हो गया एट सर्टेन एरियाज, तो वो जो खाली जगह है दैट इज फिल्ड बाय
व्हाइट फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू, इसीलिए आपके ट्रांसलूसेंट स्किन के नीचे जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं दे आर ओनली एंड ओनली व्हाइट फाइबर्स, उसके अंदर उसके they are not areolar connective tissue completely, they are only collection of white fibers. So those are called as stretch marks because of excessive stretching of your skin, right? Subsequently the areolar connective tissue cannot stretch for that extent, so there are breaks or cuts which are, or internally there are spaces which are being produced and these spaces are filled by white fibers. Very clear on that? So that is one extra information with respect to white fibers. White fibers are very important for healing process, है ना, कि जो भी आपके टिश्यू को इंजरी हुई है that is it is the white fibers which helps you to heal it very faster. ठीक है बेटा? So fibers component हमने यहाँ पे लिख दिए, अब cellular components लिखना है। अब देखो सेलुलर कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो हम लोग लिखने वाले हैं, मैं सेलुलर कंपोनेंट यहां पे लिखूंगा बेटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो हम लिखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। The other cell is macrophage. The other cell is mast cell. Mast cell, ठीक है। The other cell is plasma cell. ओके, चार डिफरेंट टाइप के नए टाइप के सेल्स आप पढ़ने वाले हो। सो फाइब्रोब्लास्ट ऐसे ही नाम बता रहा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइब्रोब्लास्ट? फाइबर्स बनाने वाले, ब्लास्ट refers to which makes up. So what is the function of fibroblast? Secretion or production of protein fibers. So जो भी आपका कोलेजन है, जो भी आपका इलास्टिन है, जो भी आपका रेटिकुलर है, कौन बना रहा है? फाइब्रोब्लास्ट. स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिकली these are स्टार शेप सेल्स, जैसे स्टीलेट शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोफाजेस जो है, मैक्रोफाजेस आर एसोसिएटेड विद फेगोसाइटोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय फेगोसाइटोसिस? सेल ईटिंग सेल। फॉर एग्जांपल अभी देखो रोल, इसका रोल बात करते हैं। अगर आपको कोई टाइप की इंजरी हो गई है ना, एक मिनट पहले सारे फंक्शन लिख लेते, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी हील्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजरी, ठीक है। मास्ट सेल का फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। पहला कंपोनेंट है हेपेरिन, histamine and serotonin. Let's try to understand what are these, ठीक है। Let me first complete this much. So mast cell हो गया, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ओके, तो डॉक्यूमेंट फाइब्रोब्लास्ट बेटा, फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन आपको समझ गया कि ये बनाना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप छोटे बच्चे हो, खेलते खेलते गिर गए, है ना, और आपको घुटने में चोट आई है, एंड इट इज अ बिग इंजरी। एक सर्टेन टाइम के बाद आपका ब्लड फ्लो वहां पर रुक जाता है, राइट। सो दैट वो रुकने का ब्लड फ्लो रुक क्यों जाता है, राइट? बिकॉज ऑफ योर सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन करता क्या है एट द साइट ऑफ इंजरी? ओके, सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है बेटा? सेरोटोनिन इज अ vasoconstrictor। वैसो का मतलब क्या है? वेसल्स। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? लिगामेंट को कम करना, कंस्ट्रिक्ट करना।
ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर, डायलेट का मतलब डायमीटर बढ़ाना, कंस्ट्रिक्शन का मतलब डायमीटर को कम करना। सो वेसल्स vasodilation, vasoconstriction, serotonin is a vasoconstrictor. So what is the role of serotonin? Whenever you have any type of injury, body की physiological activity starts, है ना, मतलब वो injury is a trauma। देखो body trauma नहीं assume, trauma accept नहीं कर सकता। अगर आपको सुई की टोच, सुई की एक मेहंदी so bad, सुई की नोक, हाँ सुई की नोक अगर टोचा जाता है तो your body also throw a drop of blood and again तुरंत it is healed. So your body wants to heal, your body wants to keep you absolutely painless and keep you absolutely fine. करेक्ट। सो अगर आपको कोई टाइप की इंजरी हो गई, सो इट इज अ ट्रॉमा। दिमाग पे पहले तो लगता है कि अरे लग गई है बहुत जोर से, राइट। सो वो ट्रॉमा में बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो इट माइट लीड टू डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, करेक्ट। सो ये ट्रॉमा में एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो तो एट दी सरफेस जो भी ब्लड वेसल्स को इंजरी हुई है ना, ट्रॉमा मतलब वही है ना कि अगर आप घिस गए, अगर आपको चोट लगी है, दैट मींस वहां के जो ब्लड वेसल्स है, दोज ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन, राइट, दोज ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन, इसीलिए उस ब्लड वेसल से ब्लड आता है, राइट। सो उस ब्लड वेसल का अगर ल्यूमेन कम कर दिया, तो अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन कर दिया तो द ब्लड फ्लो विल बी समवेयर डाउन द लाइन रेस्ट्रिक्टेड। सो योर बॉडी ट्राइज टू सेव द ब्लड बाय secreting vasoconstrictor, that is serotonin. So under your skin there is areolar connective tissue. If there is damage to the areolar connective tissue, immediately serotonin will be released and the blood flow will be limited. I will not say stopped, but the blood flow will be limited. ठीक है। अब हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज अ vasodilator. वैसोडाइलेटर क्या है बेटा? वैसोडाइलेशन रेफर्स टू डायमीटर को इंक्रीज करना। अब ये क्यों हो रहा है? दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड टू शो द साइंस ऑफ एलर्जी। अब आपको जो एलर्जी आती है बॉडी में, है ना, आपको हाइव्स के फॉर्म में आते हैं, दाने आते हैं या फिर बड़ा सा पैच आ जाता है, दैट एलर्जी इज ड्यू टू हिस्टामिन। ठीक है। अब हिस्टामिन करता क्या है? वेसल्स का वैसोडाइलेशन कराएगा। अगर वेसल्स का डायलेशन, डायमीटर इंक्रीज हो गया तो देयर विल बी गैप्स इन दी एंटायर। तो आप ये समझ लो ये ट्यूब है, अब ये ट्यूब का अचानक से मैंने डायमीटर इंक्रीज कर दिया तो ये पूरा का पूरा सेलुलर एसोसिएशन विल बी डिस्टर्ब एंड देयर विल बी गैप्स इन दिस ट्यूब, and because of the gaps in the tube, the plasma component, the fluid component of the blood leaks under your tissue, ठीक है, which leads to swelling। समझ में आ रहा है बेटा? है ना? तो कोई टाइप की एलर्जी की वजह से एक्टिविटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बी स्टिंग हुआ है, अगर मेरे को एंट बाइट हुआ है ना, तो एंट बाइट में इट रिलीजेस अ एलर्जन कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। अभी फॉर्मिक एसिड क्या करेगा? इट विल रैपिडली एसोसिएट एंड इट विल इंक्रीज दी। अब ये फॉर्मिक एसिड इज अ टॉक्सिन बेटा, देखो सब लॉजिक है, बॉडी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फॉर्मिक एसिड आपके लिए तो टॉक्सिन है, करेक्ट। सो टॉक्सिन को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? आपको फ्लूइड चाहिए। इस टॉक्सिन को डाइल्यूट करने के लिए रिक्वायर फ्लूइड। सो जहां पे आपको बाइट होता है, एट दैट पॉइंट द टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड। When your body wants to dilute that particular toxins, because आपको एलर्जी के साइंस बहुत टाइम तक, देखो मूंगी काटती है, चींटी काटती है, एट सर्टेन पॉइंट क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको वो स्वेलिंग दिखता है एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गॉन। अब आपने कभी सोचा है होगा क्या कि ऐसा क्या होता है कि मूंगी काटने की वजह से क्यों होता है फिर अपने आप चले क्यों जाता है? So this is the physiological activity. So when an ant bites you, it releases formic acid under your skin. करेक्ट। अब उसको क्लियर करना है तो क्या करेगा? बॉडी क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यू में से मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामिन। नाउ दिस हिस्टामिन विल गो एंड कॉज vasodilation ऑफ योर ब्लड वेसल, दैट इज अंडर योर स्किन। जो भी कैपिलरीज है उसका वो ल्यूमेन इंक्रीज करा देंगे। उसका ल्यूमेन इंक्रीज कर दिया तो व्हाट विल हैपन? द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, द प्लाज्मा कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विल लीक आउट फ्रॉम दैट ब्लड वेसल एंड विल स्प्रेड अंडर द टिश्यू। अब ये प्लाज्मा कंपोनेंट वाटर है,
अब ये वाटर क्या करेगा बेटा, इट विल डाइल्यूट द फॉर्मिक एसिड ब्रिंगिंग द लेवल्स ऑफ एनर्जी टू अ लेसर एक्सटेंट। समझ में आ गया बेटा? तो सेरोटोनिन शोज द साइंस ऑफ एलर्जी। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, I don't know if you have heard this, but this is your assignment for today, research topic दे रहा हूँ, जब लिख रहा हूँ मैं research topic। रिसर्च टॉपिक है एनाफाइलैक्टिक शॉक। What do you mean by anaphylactic shock? क्या एक बी स्टिंग से इंसान की मौत हो सकती है? Possibly नहीं। Just one bee biting you will only give you a painful type of experience. But what if a person is bitten by millions of bees? एक bee ने काटा तो the amount of toxin which is entered into your body is comparatively lesser. But if there are millions of bees which are biting you, so there will be millions of toxins, millions of amount of toxins which enter into your body. तो आपके बॉडी की टॉक्सिसिटी लेवल इतनी ज्यादा हो जाती है कि बॉडी इसको कुछ नहीं कर सकता, बॉडी हार मान लेती है फिर। ठीक है, तो आपके बॉडी में अचानक से देयर इज सो मच इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से यू एक्सपीरियंस अ शॉक एंड दैट शॉक इज डेथ। तो ये टॉक्सिन्स क्या करेंगे, they will start destroying your multiple organs, leading to multiple organ failure, leading to death। तो एक इंसान की डेथ हो सकती है also due to bee sting, but for that number quantity is very important। So anaphylactic shock is a shock with respect to, shock नहीं बोल सकते, but it is a death-like condition, fatal condition of accumulation or due to accumulation of large amount of toxins। ठीक है बेटा? तो ये हो गया with respect to histamine। उसके बाद हेपारिन। हेपारिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट। हेपारिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट। अब एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है? जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा, अब देखो when you talk about the signs of allergy, प्लाज्मा लीक आउट होगा। प्लाज्मा इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड प्लाज्मा हैज द नेचर ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, सो प्लाज्मा जो लीक आउट हुआ है, अगर वो स्किन के नीचे ही क्लॉट हो गया तो अगेन ऊपर से और खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तो लगाना। तो बोलने का मतलब यही है बेटा कि when you talk about histamine, vasodilation वो कर रहा है, histamine is letting the plasma component of the blood to get accumulated under your skin। but ये ऐसा हो सकता है कि प्लाज्मा कैन लीक, जब तक वो ब्लड वेसल के अंदर है तब तक वो क्लॉट नहीं होंगे। जैसे वो ब्लड वेसल के बाहर आ गए, टिश्यूज में आ गए, तो वो उसकी क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी है, एंड वो पॉसिबिलिटी को कम करता है हेपारिन। इट डज नॉट लेट द प्लाज्मा टू बी क्लॉटेड अंडर योर स्किन, बिकॉज़ द एंटायर पर्पस ऑफ लीकिंग द प्लाज्मा इज यूजलेस। नो, अगर वो क्लॉट हो गए है ना, तो आपका जो पर्पस है कि टॉक्सिन्स को क्लियर करना है, दैट पर्पस इज एब्सोल्युटली शैटर्ड, right? So your body is such a beautiful structure and everything is so properly orchestrated and so properly managed। ठीक है बेटा? तो that is with respect to mast cell। फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मास्ट सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया। प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब वही मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या है, कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद डिक्रीजिंग द ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। लेट्स कम बैक टू इंजरी अगेन। ठीक है, आपको इंजरी है, यू हैव एन ओपन वुंड, है ना, गिर गए, उसके अंदर कचरा है, डस्ट पार्टिकल्स है, पहले तो मैं आकर गर्म पानी से वो साफ करता हूँ। ठीक है, क्यों? अगेन गर्म पानी से क्यों कुछ करना चाहिए और ठंडे पानी से क्यों? बिकॉज वार्म वाटर विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। अगर कोई कचरा, अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स अटका भी है, सो ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड सप्लाई दैट विल बी क्लियर। चलो ठीक है ना, तब 1-2 ml का ब्लड और लॉस होगा, कोई बात नहीं, we have the body to we have a very beautiful body to replenish that। तो इसलिए हम वार्म वाटर से वुंड को क्लीन करते हैं। We should not never use cold water। ठीक है, ये बेसिक नुस्खा है। So I told you that there is
सॉइल मट्टी होगा, सॉइल में इतने सारे बैक्टीरिया होंगे, है ना, डेफिनेटली दैट बैक्टीरिया इज नॉट एसोसिएटेड टू कॉज अ डिजीज, बट वो इंजरी की हीलिंग को स्लो कर सकती है, राइट। सो ऑल मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल दे आर एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी, प्रिवेंटिंग ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होगा कि अगर इंजरी है तो उसमें एयर के बैक्टीरिया है, सॉइल के बैक्टीरिया है, वाटर के बैक्टीरिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट कैन लिव एंड दैट कैन proliferate and grow, leading to rotting of the tissue. टिश्यू सड़ने लगेगी, राइट। सो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? मैक्रोफेजेस। So macrophages will start accumulating at the site of injury, and अगर कोई इंजरी में कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है, कोई अदर पैथोजन आ रहा है, तो the macrophage will engulf, खा लेंगे ये राक्षस सेल्स है, so they will eat it, so thereby preventing you, keeping your physical condition absolutely fine. ठीक है बेटा, तो मैक्रोफेजेस हो गया। प्लाज्मा सेल इज एसोसिएटेड विद एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अगेन एंटीबॉडी क्या है? दे आर chemicals or proteins acting against a particular pathogen or pathogenic material। ठीक है बेटा, तो इतना आपको कॉपी करना है विद रिस्पेक्ट टू मैक्रोफेजेस। एकदम भरा भरा बोर्ड दिख रहा है, मस्त लग रहा है ना, तो भरा भरा बोर्ड है, तो आई एम गेटिंग आउट द फ्रेम, पॉज एंड राइट व्हाटएवर you have seen on the board। हो गया बेटा, चलो पूरा सफा चेक करना है अभी। ओके, so that is with respect to areolar connective tissue. We still have to write the functions of areolar connective tissue. Please write down the functions. I am not writing it on the board, right? What is the function of areolar connective tissue? पहला function क्या है? It is connection between, or it is joining the muscles with the skin। ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या है? रिपेयर मैकेनिज्म। इट इज एसोसिएटेड विद हीलिंग और रीजेनरेशन और रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, इन दो मेजर फंक्शंस था। अब दूसरा टाइप का टिश्यू बात करते हैं, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका रिसर्च टॉपिक है, ये आपको ढूंढना है और लिखना है कोई एक शीट ऑफ पेपर पे। अगेन ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट। अगर पर्सनल इंटरेस्ट से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला। आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड यू टू डू द असाइनमेंट। Okay, so the second type of tissue which we will be talking about is adipose connective tissue. Adipose connective tissue का डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे बेटा।
So adipose connective tissue will have large globular cells, and these large globular cells are called as adipocyte. Large globular cells are called as adipocytes. ठीक है, और ये वही है, ये क्या होगा, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कुछ फाइबर बना लो। Now these adipocytes का characteristic feature क्या है? Each adipocyte, when you talk about the feature of adipocytes, these are large globular cells having a large central vacuole. As you can see, because of the presence of large vacuole, the nucleus is pushed towards the periphery. ठीक है? So what is the role of these vacuole? This vacuole is for the storage of fat. ये vacuole के अंदर fat stored होगा बेटा, ठीक है? Hence the adaptation for adipose connective tissue is that it will have adipocytes having large fat globules or large fat containing vacuoles. ठीक है बेटा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स और फैट एक्यूमुलेटेड। अभी मैंने आपको ये बताया था कि फैट का क्या रोल है बॉडी में, कि इट इज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल शॉक अब्जॉर्प्शन एंड आल्सो इट इज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल शॉक अब्जॉर्प्शन बात किया हमने, आल्सो इट इज एसोसिएटेड विद प्रिवेंटिंग द हीट, इंटरनल हीट टू पास आउट, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ इंसुलेशन आल्सो। Correct. So I told you at required places, as you grow older and older, areolar connective tissue is replaced by adipose connective tissue, and the areas are also very fixed. I told you, है ना, belly region में मेल में associate होता है, इसलिए आप देखते हो कि तोन निकली हुई होती है आदमियों की, है ना, whereas females में it is not associated with the belly region because female has body की mechanism ही ऐसी है कि फीमेल विल हैव टू गेट प्रेग्नेंट, है ना, तो तोंद वाली फीमेल प्रेग्नेंट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। सो बोलने का मतलब ये है बेटा कि मेजर अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है फीमेल्स में, सो इट इज इन दी हिप रीजन, है ना। सो हिप रीजन में फैट अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होगा, अंडर ब्रेकियल रीजन बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन होगा, चीक रीजन, नेक रीजन में अक्यूमुलेशन होगा, चीक रीजन में अक्यूमुलेशन होगा, आईब्रोज के नीचे, ये तो कॉमन है, आईब्रोज के नीचे, आईज के ऊपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कॉमन रीजन है ना। एंड राउंड फेस हो जाता है अगर बहुत ज्यादा फीमेल्स में स्पेसिफिकली, तो बिकॉज यहाँ पे कान के यहाँ पे सब फैट एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी फैट एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे नहीं हुआ, अगर इधर ऑल द टिश्यूज आर कंपैरेटिवली फिल्ड, फिर फैट एक्यूमुलेशन विल स्टार्ट ऑन द ओवरीज एंड किडनीज, ओवरीज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, ठीक है। So when you talk about role of adipose connective tissue, यही मैंने आपको बताया कि मेल में इज कंपैरेटिवली डिफरेंट, रोल भी हमने बात कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक भी हमने बात कर लिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स लाइक फॉर एग्जांपल किडनी एंड ओवरीज, दे आल्सो हैव अ कवरिंग ऑफ adipose connective tissue, ठीक है। adipose connective tissue is also seen in the yellow bone marrow, आपके जो लॉन्ग बोन्स है उसकी सेंट्रल कैविटी में, लॉन्ग बोन्स के सेंट्रल कैविटी में there is accumulation of yellow bone marrow, ठीक है। और ये yellow bone marrow भी adipose connective tissue का ही पर्टिकुलर adaptation है, modification, ठीक है। So that is with respect to areolar connective tissue and adipose connective tissue. फंक्शन हमने adipose function, adipose का फंक्शन लिख लिया, एंड ये भी लिख लिया कि areolar gets converted into adipose and
required places. ठीक है. So that is with respect to loose connective tissue. Loose connective tissue में इतना ही था. Next class में we will take up dense connective tissue. ठीक है. So that is all for today. Take care of yourself. Enjoy your day.